Hello friends, this is our important topic, not important, this is very interesting topic, that is how to think in maths. How to think in maths is mean that if you are trying to solve mathematics, if you want to be a good learner or good in mathematics and make your skills and make a word in this mathematics, so you have to think like that to me, according to me like this. So इफ़ आई से डैट कि जैसे कि अगर मैं जैसे सोचता हूँ, अगर इतना ज़्यादा अगर आप ये सोच पाते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल सिर्फ सॉल्व करते हैं कि मतलब कि जैसे कि सपोज आपने एक नंबर देखा होगा जिसको कहते हैं हम लोग √2। ओके, सो व्हाट इज़ दिस नंबर? दिस इज़ इरेशनल नंबर ऑब्वियस। This is a rational number. Okay, but not only this. If we want to calculate a numerical value, that is easy to calculate it. Okay, if we are not able to make it accurate, but we are able to make this approx in this case. Okay, so like way we are applying this method, that is take √2 and any number whose square is less than √2, whose square is less than 2, that is 1, so take it here 1. And what is the square of 1? 1. And how much number is less than from 2? That is 1. And the original number we want, that is √2 is out of root, that it will be 2 here. Okay, this is called mixed fraction number. So after the equations, that 1 into 2, and afterward plus 1, 2 plus 1 is equal to 3, 3 by 2 is your answer. That is approx to √2, approx only, not confirmation, that is equal. Okay, so if we find a decimal value, that is to 1.5. Okay, but I know that is a √2 is we are seeing the √2 is equal to 1.14, that is too much difference over here. Okay, so अगर हम इसको थोड़ा सा एक चेंज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट तो देखा ही होगा। एक्सपेरिमेंट में कैसे हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये नंबर कोई सपोज करिए, कोई भी एक नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर, दैट इज़ 5 या, और इसकी पावर अगर 1 रखते हैं तो इज इक्वल टू 5 ही आता है। ओके ओके, इफ वी स्क्वायर is equal to 25, is it clear? Okay, now if we improve some step, that is suppose like this, 5√1, then what is the value? That is equal to 5 1 upon 1 by 2. Okay, like this way we calculate this one. 1 power 1 by 2 means 1 root is equal to always 1, that is equal to 1 by 5. 5 power 1 is equal to 5, it was obviously right, correct. But we change the number, like suppose we are getting that 5 power √4 is equal to, also easy to find this. Okay, that should be √4 is equal to 2, 5 power 2 is equal to 25 या। बट अब इसमें थोड़ा सा गेटअप चेंज करता है, ठीक है। जैसे कि 5 की पावर हम लेते हैं √2, देख लीजिए आप लोग आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके,
5 की पावर हम लोगों ने क्या लिया, √2 लिए ना। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, अप्रॉक्स में लेके आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3/2, दैट इज what is the cube of 5 is equal to 125, that if we say that written is a simple form, that is take a root and written 5 to 5 into 5, that is there, and if we answer it, that is equal to 5 √5. so simply we say that any number जैसे 5 √2 है तो उसका हमेशा जो नंबर आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वही नंबर रहेगा, बट एक टाइम इन नेचुरल फॉर्म एंड एक बार रूट के अंदर, ठीक है, एक बार डेसिमल फॉर्म में, एक बार रूट के अंदर। इस तरीके से जैसे अगर आप 2 की पावर √2 लेते हैं तो सेम ये भी आने वाला है कुछ ऐसे 2 √2। ये हैव यू थिंक एवर, मतलब कि आपने इसको पहले भी कभी सोचा था? नहीं सोचा था तो देख लीजिए, कुछ ये उस प्रकार से होता है। ओके, नाउ मूव टूवर्ड, आप लोग कोई भी ओरिजिनल नंबर का ऐसे तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन चलिए अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे कोई एक नंबर, जैसे सपोज करते हैं पाई। तो आप लोगों ने सोचा ही होगा, जैसे 3.14। क्या आप लोगों ने इसको रूट के अंदर लेने की कोशिश की है? दैट इज लाइक दिस। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? शायद ये क्वेश्चन कहीं आप लोगों ने कहीं पे भी ना सुना हो, ये इस तरह का सिचुएशंस। ओके, if I say that I also don't know what is about this. If we say that simply is written at like this, √22/7 is like that. If I calculate that 20√2/7, it's obviously that is equal to 1.4 and is always like equal to like that या सी। तो इसको अगर करना चाहें तो ये भी ऐसे ही 1 आ जाएगा फिर यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, पर डेसिमल वैल्यू हम लोग नहीं ले पाएंगे। जैसे कि अगर 2 लेते हैं तो फिर 2.14 हो जाता है, ठीक है। और ओरिजिनल नंबर क्या है, जैसे पाई है, तो मतलब उसके लिए हमें 22/7 अपवर्ड से ज़्यादा लेना पड़ेगा। फिर कुछ इस प्रकार से ये इक्वलेट होकर आएगा, 1 होल पे रहेगा। ओके, 14 इंटू 7 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 22 एंड पॉइंट डेसिमल वैल्यू नीचे जाएगी जब, तो फिर ये हो जाएगा 100। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने के बाद आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर 2 7 4 28 like this we have। अगर ये इक्वेशन अगर सॉल्व होता है तो जो अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी इज इक्वल टू अप्रॉक्स इसके इक्वल। चलिए निकाल के देख लेते हैं। जैसे मल्टीप्लाई 1 ही है तो फिर ऐसे हो जाएगा, ये 8 9 6 3/2200 इज अप्रॉक्स। सॉरी, अप्रॉक्स अच्छे से नहीं बनाना आता, एक बार फिर से लिखते हैं। 398,200 अप्रॉक्स √π। सो कंसेप्ट कैसा लगा, मतलब कि कैसे थिंक होती है ना, वो चीज़ आपको बताना चाहता था। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, वैसे इंटरेस्टिंग भी रहा होगा कि मतलब कोई एक नई चीज़ सीखने को मिली, मतलब नई चीज़ सोचने समझने को मिला होगा। वैसे ये वाला कंसेप्ट तो ऐसे मैंने खुद से बनाया है, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। बट आई थिंक जैसे कि इरेशनल नंबर का रूट जो है ना, वैसे पॉसिबल नहीं है निकाल पाना। अगर निकाला जाए तो उसके लिए हमको इक्वलेट डिजिट चेक करनी पड़ेगी कि हमें कितना डिजिट पे उसका
रूट चाहिए रहता है, नहीं तो फिर ऐसे निकालने चले जाएंगे तो इरेशनल का ऑलरेडी एंड नहीं होता है, तो फिर इसका ऑब्वियस बात है रूट का भी एंड नहीं होने वाला, तो वो भी एक मिस्ट्री टाइप बन के रह जाएगा फिर इसी तरीके से। इसके लिए हमको जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे कि अगर रूट पाई है तो उसकी वैल्यू तो निकाली जा सकती है, बट हमें उसके लिए देना पड़ेगा कि हमको कितने कितने डेसिमल प्लेस तक चाहिए। जैसे कि आई वांट डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल प्लेस, तो उसके लिए जैसे यहाँ 0 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस हो गया। अब इसको क्रॉस आउट करेंगे, फिर 4 डेसिमल प्लेस के बाद हम इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो हम लोग के लिए इसके हिसाब से एक रिजल्ट वेरी कर जाएगा कि हाँ इतना हो सकता है मे बी, बट ये भी जो होगा ना अप्रॉक्स होगा, क्योंकि जो ये मेथड अप्लाई होती है यहाँ पे इस तरीके से ये निकाल देते हैं, तो इससे हर एक इरेशनल नंबर को आप फ्रैक्शन वैल्यू पे कन्वर्ट कर सकते हो, बट ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर दिस, मेक योर डे हैप्पी एंड enjoy your day, thank you।